عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر انجینئر رشید جیل سے رہا ہونے کے بعد آج جب وہ گھاٹی پہنچے تو ٹھیک ایئرپورٹ سے لے کر بارامولہ تک پترکار ان کے پیچھے پیچھے، عوامی اتحاد پارٹی کے کارکرتا ان کے ساتھ ساتھ، لنگیٹ کی اور بارامولہ کی اور نارتھ کشمیر کی اگر میں 16 کانسٹیچوئنسیز کی بات کروں تو ہر کانسٹیچوئنسی سے چیدہ لوگ، بوڑھے جوان بچے، سب انجینئر رشید کو دیکھنے کے لیے اور اس کی باتیں سننے کے لیے پہنچ گئے۔ انجینئر رشید کل جب رہا ہوئے تو ان کے رہا ہونے کی تصویر وہ بہت اہم ہے۔ وہ تصویر اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کرتی ہے۔ وہ تصویر جو تجزیہ نگار ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ انجینئر رشید کا نائلن کی چپل میں اور سادے لباس میں اسی تنبی کرتے میں باہر آنا، جس میں وہ اکثر و بیشتر نظر آتے تھے، جب وہ باہر آئے اور اسی چپل میں جب وہ باہر آئے تو وہ یہ بات وادی کشمیر کے لوگوں کو باور کرانی تھی کہ جو الزام مجھ پہ لگایا جا رہا ہے کہ میں بی جے پی کی ایما پر یہاں آ رہا ہوں، مجھے رہائی ایک خاص مقصد کے لیے دلائی گئی ہے، میں جیل سے چھوٹا نہیں ہوں، مجھے چھڑوایا گیا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے ذہن کام کر رہے ہیں۔ ان سبھی باتوں کا جواب انجینئر رشید نے جیل سے نکلتے ہی اس سادے لباس، اپنی چپل اور اپنے سادے انداز میں انجینئر رشید نے دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انجینئر رشید انہوں نے صحافیوں سے بھی بات چیت کی۔ صحافیوں سے بات چیت کرنے کے بعد انجینئر رشید جموں کشمیر ہاؤس پہنچے۔ جموں کشمیر ہاؤس جموں کشمیر کے باشندوں کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک رہائش گاہ بنائی گئی ہے۔ جموں کشمیر ہاؤس وہ پہنچتے ہیں اور وہاں جموں کشمیر ہاؤس کے 201 بی سے کمرے میں وہ بیٹھتے ہیں اور وہاں سے وہ لائیو کرتے ہیں انجینئر رشید کے پیج سے، اور اس لائیو پر وہ کھری کھوٹی سناتے ہیں ایکس چیف منسٹر محبوبہ مفتی کو، ایکس چیف منسٹر عمر عبداللہ کو، اور دونوں کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو الزامات مجھ پر لگا رہے ہیں، یہ الزامات لگانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں جیل میں رہوں، آپ چاہتے ہیں کہ میں جیل میں سڑتا رہوں۔ یہ تمام باتیں جو عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے کہیں، ان تمام باتوں کا انہوں نے جواب دیا۔ حالانکہ جس زبان کا استعمال انجینئر رشید نے ایکس چیف منسٹر محبوبہ مفتی کے لیے کیا، وہ زیب ان کو نہیں دیتی۔ ایک تو وہ خاتون ہے، دوسرا ایکس چیف منسٹر ہے، اور ایک ہی خاتون چیف منسٹر جموں کشمیر کی رہی ہیں۔ تو جن الفاظ کا استعمال انہوں نے کیا، وہ ہو سکتا ہے جذبات میں کیا ہو، لیکن بحیثیت لیڈر اور عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر، اور چونکہ وہ خود کو رہنما اور ساتھ میں بہت بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پر ان کی فالوئنگ، اور یہ خطرہ نیشنل کانفرنس کو لاحق کہ 16 نارتھ کشمیر کی سیٹوں کے اوپر وہ اثر انداز ہوں گے، ساؤتھ کشمیر میں وہ ہڑکمپ کر سکتے ہیں، سینٹرل کشمیر کا سمیکرن بگاڑ سکتے ہیں، یہ سارے خطرے نیشنل کانفرنس کو بھی ہیں، یہ سارے خطرے پی ڈی پی کو بھی ہیں۔ تو جس سیاسی لیڈر کی اتنی طاقت ہو، جس سیاسی لیڈر سے دو بڑی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیاں، جن دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا کیڈر ہے، خوفزدہ ہو، اس سیاسی لیڈر سے اس زبان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس سیاسی لیڈر سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے حریفوں کو کرٹیسائز کریں، مگر آپ کا لہجہ، آپ کی زبان، آپ کے الفاظ وہ ہوں جو معنی خیز ہوں، اور بات آپ کہیں، تلخ کہیں، مگر تلخ بھی اس انداز میں کہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زبان جموں کشمیر کی ایکس چیف منسٹر کے لیے اور ایک خاتون کے لیے بطور خاص انجینئر رشید کو استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اس لائیو کے بعد ایک ماحول بنا، اور ابھی تک انجینئر رشید کے پیج کے اوپر عوامی اتحاد پارٹی کے کارکن 2.1 ملین وہ ویڈیو کراس کر گئی، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
उसके बाद आज इंजीनियर रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आज इंजीनियर रशीद ने लोगों से खिताब भी किया, बड़ा जज्बाती खिताब था। लेकिन इस जज्बाती खिताब के बीच में इंजीनियर रशीद ने कल भी 3 सेपरेटिस्टों के, सैयद अली शाह गिलानी, अशरफ सहराई और उसके अलावा अल्ताफ फंतूश का नाम लिया। इन तीनों लोगों का नाम उन्होंने लिया और इन तीनों को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही। एनआईए में जो एक मामला उनके खिलाफ बना हुआ है वो अभी तक बना है। उस मामले में उनके ऊपर यह इल्जाम है कि उन्होंने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए जो पैसा आता है उस सिलसिले में उनके ऊपर कुछ इल्जामात लगे। उस पर बात फिर कभी, फिलहाल बातें सियासी। अब पहली बात तो ये कि इंजीनियर रशीद वापस आने के बाद नौजवानों से भी बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये कह रहे हैं कि आप बताइए 370 को वापस लाने का क्या फार्मूला आपके पास है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मगर हैरानगी मुझे इस बात पर हो रही है कि यह घबराहट नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को क्यों? पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से यूनियन टेरिटरी का असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले उमर अब्दुल्ला कम से कम अपने वर्कर को ही यह बताएं कि वो यूनियन टेरिटरी, जिस यूनियन टेरिटरी में एक चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात लगभग ना के बराबर होंगे, जिस यूनियन टेरिटरी में वो अपनी मर्जी का चपरासी भी नहीं लगा सकते, जिस यूनियन टेरिटरी में वो पुलिस के कामकाज में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, जिस यूनियन टेरिटरी में आईएएस अफसरों का तबादला नहीं कर सकते हैं, जिस यूनियन टेरिटरी में अपनी मर्जी का बिल असेंबली में नहीं पास कर सकते हैं, जिस यूनियन टेरिटरी को स्टेट में तब्दील करने के लिए कोशिशें तो कर सकते हैं, मगर रास्ता जिसका लोकसभा और राज्यसभा से जाता हो, उस यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जब एक सियासी जमात का इतना बड़ा लीडर, जिसने ऐलानन ये कहा हो कि मैं असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, जब वो लीडर जिसने ऐलानन ये बात कही हो फिर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े और फिर इंजीनियर अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद की रिहाई को के ऊपर तंज कसे या सवाल करे, फिर हैरानगी होती है कि इतनी कमजोर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इतनी उठापटक क्यों? इतनी कमजोर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इतनी मारामारी क्यों? जीतकर आखिरकार आपने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या इनकलाब लाना है, यह एक आम आदमी वादी कश्मीर का पूछता है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती पीडीपी की तरफ से एक्स चीफ मिनिस्टर भी रही हैं और मैंने पहले ही कहा, सियासत में आप कितनी भी एक दूसरे की मुखालफत करें, लेकिन इतना 2 सियासतदानों के बीच में इतनी बात बाकी रहनी चाहिए कि नजर से नजर मिलाई जा सके। जहां तक एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक है, उन्होंने भी इंजीनियर रशीद को लेकर कहा कि बीजेपी के प्रॉक्सी हैं और लगभग तमाम जमातें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मद्दे मुकाबिल हैं उन्हें प्रॉक्सी कहा जा रहा है। सवाल फिर वही कि अगर हम एक कमजोर तरीन यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें आपको म्युनिसिपैलिटी के तौर पे काम करना है, जिसमें आपका काम लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है, तो उस यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अपने हरीफों को बीजेपी का प्रॉक्सी बताने की जरूरत क्या है? अगर इस असेंबली की कोई ताकत नहीं, अगर इस हुकूमत में कोई ताकत नहीं, अगर इस हुकूमत के तमाम इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, तो फिर इतनी मारामारी क्यों? आपको याद होगा साल था 2020 और मैंने साल 2020 में गालिबन जून और जुलाई के महीने में एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं अब जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली के इंतखाबात हुए हम देखेंगे उनमें हिस्सा कौन लेगा, मैंने कहा था जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होंगे तारीखी होंगे। मैंने कहा था वो सूरत पैदा होगी जिस सूरत में कश्मीर का बच्चा बच्चा, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में रहने वाला हर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए अपने घर से बाहर निकलेगा, मशीन का बटन दबाएगा, वोट देगा और वोट देकर यह कहेगा कि मैंने भी जमहूरियत के अमल में शिरकत की है। और आज आप देख रहे हैं इंजीनियर रशीद हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सज्जाद गनी लोन हो, सैयद अल्ताफ बुखारी हो,
मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हो, हुर्रियत के लीडर सैयद सलीम गिलानी हो, या उसके अलावा जमात इस्लामी के वो आइडियोलॉग्स और जमात इस्लामी के वो जबरदस्त लिखारी, जमात इस्लामी के वो जबरदस्त बोलने वाले और जबरदस्त कलाम करने वाले बड़े बड़े नाम हों, वो भी इस जमहूरी अमल में शिरकत करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। क्या ये हिंदुस्तान की जमहूरियत की सबसे बड़ी जीत नहीं है? और जहां तक अवामी इत्तेहाद पार्टी का ताल्लुक है, एक बात तो बिल्कुल साफ है, नॉर्थ कश्मीर की 16 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त परेशानी देखने को मिल रही है। साउथ कश्मीर में पीडीपी भी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि वो जानते हैं सोशल मीडिया के ऊपर अवामी इत्तेहाद पार्टी को लेकर जो यूफोरिया है, अगर वो यूफोरिया वोट में तब्दील हुआ तो उसका नतीजा ये निकल सकता है कि दोनों जमातों को उसका सियासी नुकसान होगा। और अगर दोनों जमातों को सियासी नुकसान हुआ तो वो ख्वाब कि हम अपनी मर्जी की हुकूमत यहां बनाएंगे, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तो इसलिए अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद ने आज जो तमाम बातें कही हैं, या अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद को लेकर जो सरजान बरकाती की बेटी ने आज कुछ बातें कही हैं, उन तमाम बातों को खातिर मिलाकर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कुछ तो इस जमहूरियत ने ऐसा किया है कि सरजन बरकती की बेटी भी अपने अब्बा का फॉर्म लेकर जाती हैं कि वो अपने अब्बा का फॉर्म भरें और उनके अब्बा जेल से असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लें। इंजीनियर रशीद असेंबली लोकसभा जीत चुके हैं और उनकी जमात अब असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। यही माहौल जम्मू संभाग में भी बना है। कुल मिलाकर यह कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद के आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस और जितनी भी रिवायती पार्टियां जम्मू कश्मीर की हैं, उनके खेमे में हड़कंप मचा है। वो जानते हैं कि समीकरण बिगाड़ने के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद आए हैं, मगर इंजीनियर रशीद ने जो सवाल पूछे हैं, उन सवालों का पूछने का उनका जो तरीका है, वो जो लहजा है, उस लहजे से आपको परेशानी हो सकती है, मगर सवाल बिल्कुल उन्होंने सटीक और सादे पूछे हैं। और आज भी आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने चप्पल निकाली और दिखाई, कहा कि यही चप्पल पहनकर मैं जेल गया था और यही चप्पल पहनकर मैं बाहर निकलूंगा। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला भी जो बयान दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि वो इंजीनियर रशीद सिर्फ 2 अक्टूबर तक बाहर हैं, उसके बाद दोबारा उनको तिहाड़ जेल जाना है। तो इसका मतलब जब आप कन्विंस हैं इस चीज को लेकर कि इंजीनियर रशीद को जेल वापस जाना है, तो फिर उसे किसी जमात का या नई दिल्ली का एजेंट बताना समझ से परे है। रिवायत रही है कश्मीर में कि अगर आप रिवायती जमातों के साथ नहीं हैं, आप रिवायती जमातों में शामिल नहीं हैं, तो इसका मतलब आप नई दिल्ली के एजेंट हैं। अगर आप रिवायती जमातों के कारकुन नहीं हैं, तो आप दिल्ली के एजेंट हैं। ये इल्जामात आज से नहीं, साल 1953 से लगते आए हैं। सियासत इसी तरीके से चलती रहेगी, आगे भी सियासत इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। मगर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंजीनियर रशीद को वालिहाना इस्तिकबाल अपने नॉर्थ कश्मीर में मिला है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए सरदर्द बने हैं। बयानात और बयानात के जवाब में बयानात होंगे, मगर ये बात जहन नशीन कर ली जानी चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आप एक कमजोर लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा होंगे। आप जम्मू कश्मीर को अगर यूटी से स्टेट बनाना चाहते हैं तो रास्ता असेंबली से नहीं, पार्लियामेंट से जाता है। आप 370 को वापस लाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब आपको वापस लोकसभा से जाना है, तो आपके तमाम काम लोकसभा से होने हैं। ये आपके तमाम काम इस मुल्क के प्रेसिडेंट ने करने हैं। तो जब आपके हाथों में और आपके असेंबली में वो ताकत, वो सकत है ही नहीं जो वादे आप अवामुन नास से कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा ये अलग अलग स्टेजों से झूठ बोलने का, ये अलग अलग स्टेजों से ये ख्वाब दिखाने का कि कोई कह रहा रायशुमारी लाएंगे, कोई कह रहा 370 लाएंगे, ऐसे नहीं आया वैसे लाएंगे। ये तमाम वो चीजें हैं। कानूनी तौर पर अलग अलग स्टेजों से जरा लोगों को समझाइए तो सही कि किस कानून के तहत आप वो वादे पूरे करेंगे जिन वादों को पूरा करने की आप बात करते हैं। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए बगैर ये जो डेमोक्रेसी और ये जो जमहूरियत का यहां पर जश्न पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, आप इसके हिस्सेदार बने।
اس جمہوریت کے جشن کو انجینئر رشید نے بڑا انٹرسٹنگ کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں انجینئر رشید اس کو اور انٹرسٹنگ کریں گے. اور یقین مانیے کسی نے نہیں سوچا تھا, کسی کے ذہن میں یہ پکچر بھی نہیں تھی, مگر سال 2020 میں وہ جو بات میں نے کہہ کے بھی اور لکھ کے بھی کہہ دی تھی کہ سال 2024 ہو 26 ہو جب بھی اسمبلی کا الیکشن ہوگا, جموں کشمیر کی اور خاص طور پر لال چوک کی اور کشمیر کی تصویر بدلی ہوئی نظر آئے.